Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. एग्जामिनिंग कमेटी ने हमारी फिल्म जब देखी, कुछ उनको एक दो घंटा डिस्कस किया और उसके बाद हमें बुलाया गया। बेसिकली आपको समझ में 5 मिनट में आ गया था कि वो वन वे डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि एक तो पहले उन्होंने बोला कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, विच वॉज फाइन, आई एम ओके विद एनी सर्टिफिकेट। और उसके बाद उन्होंने वो कट्स के जो पूरे लिस्ट उन्होंने शुरू किया। उन्होंने पहले बोला था कि आप इसके बारे में आप बता सकते हैं, मतलब अगर वो कुछ कट बोले तो हम उसके बारे में आर्ग्यू कर सकते हैं, पर वो कभी होता नहीं है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग दे शट यू अप। They ask you, so do you want to go to the revising committee? So it's almost like a threat that happens. So where you are shut up, you have nothing to say, and there are ridiculous cuts. There are cuts like Sala and Haramzada, which I think is now, I mean, Sala to probably TV pe chal raha hoga. And so this went on and on and on, till such time that one of them said, why did you make this film? I mean, why did you, what made you make this film? So is it money? Is it, I think they even told Kiran that why, as a woman, you have made this film. So, उनमें से a lady said this. So, in reply to that, before Kiran could answer, actually, a gentleman who was there were two men, said, ये तो पैंट शर्ट पहनी हुई है तो लेडी नहीं है। एंड आई मीन वी वर एक्चुअली स्पीचलेस। इट इज हैरेसमेंट। आई फॉलोड इट अप विद ट्राइंग टू मीट मिस्टर नीलानी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अल्टीमेटली मैं चलो he made me wait for 2 hours, and the entire rigmarole of taking your phone away and stuff, that's fine. So when I enter, he says that you're lucky you're here and I haven't banned your film. So I said, sir, but on what basis would you ban my film? So he said, आपने गालियों का तो पूरा डिक्शनरी खोल रखा है, और मतलब ये जैसे there are some lines which I will not allow because of my personal reasons. जैसे फिल्म में there's a mention of this word, कोई सेंटेंस के बीच में आता है खड़ा, and it is not in the context of पहला चीज खड़ा है। So he said, ये लाइन तो ये वर्ड तो मैं कभी जिंदगी में जाने नहीं दूँ, क्योंकि ये खड़ा है के लिए तो आज तक मुझे गालियाँ मिलती है ट्विटर पे। ये आपका मतलब then he said things like, it's a adult film, agreed, but children get into the theater and watch the film. How do I stop them? But I said, that's not my problem. It's a law and order problem. How can you penalize me for a law and order situation where children get into watching an adult film? So basically, he's just ripped apart the film. After 48 cuts, I mean, there's nothing left of the film. And so I mean, we want to, I mean, he told me that if you want to go to the revising committee, you're welcome to do that. I'll double the cuts. So there was no point in my going to the revising committee in any case. So I had to skip the revising committee and go to the tribunal. So which we have done. And so there's no way that, I mean, I can release the film the way it is right now. So I have to fight it, and I'm going to fight it. Yeah, I mean, it's a careless attitude, because the list of cuts that they've given me, nobody's bothered to check that list, because the clauses that they've given me, I mean, 48 के अंदर से 35 cuts are in clause 2.7, which says smoking and drinking के ऊपर टैग लगना चाहिए। I mean, figure out what you're trying to say, figure out which clause it is under. So we have to actually hunt down कि आप actually कौन से clause के नीचे इसको डालना चाह रहे हैं। So there's a complete careless, harassing attitude of the board, and I mean, right now we're just speechless. We don't know how to react to this, but we want to take it forward, obviously. Hi, hello everyone. So. Me and Ishan and our writer, Khalid Saab, we were all there, and after the screening of the film, we were called inside. They initially had a 1-hour discussion. So obviously in that 1 hour, we were very restless outside, because we did expect a barrage of
things that, objections that would be raised, and rightly so. So when we were called inside the auditorium, basically it's sheer courtesy that you at least offer a seat to the producer, to the director of the film, which is not the practice here. So we are made to stand. We stood there for 2 hours. They do not even offer you a glass of water. So it's like a child who is being punished for doing something wrong. Basically, we have done something wrong by making this film. हिंदी में कोशिश करती हूँ। तो खैर हम ऐसे खड़े रह के बात कर रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, वी वर फाइन विद दैट। और उसका नेक्स्ट सेंटेंस था कि इसमें 48 कट्स हैं। तो हमारा एक ही सवाल था कि अगर हम एडल्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो कट्स क्यों दे रहे हैं आप हमें? तो उनका जवाब था कि क्योंकि बच्चे जाके देखते हैं ये फिल्म, जैसे कुशान ने कहा। तो द रीजनिंग, उसका रीजनिंग ही इतनी मतलब वाज मेड नो सेंस कि क्योंकि बच्चे जाके एक एडल्ट फिल्म देख रहे हैं, हम आपको एडल्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उसके साथ हम आपको इतने कट्स भी देंगे क्योंकि बच्चे ऐसे लफ्ज नहीं सुन सकते। तो इट्स कम्प्लीटली बेसलेस, कम्प्लीटली सिली आर्ग्यूमेंट। और उन्होंने कहा कि आप हमें चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने ये सारे ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स और सीन्स क्यों डाले हैं फिल्म में, जैसे लव मेकिंग सीन्स हैं, तो आपने ये क्यों डाले? तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे और सडनली ये औरत ने मुझे देखकर कहा कि आप एक औरत हो तो आपने ऐसी फिल्म कैसे बनाई? तो मेरा पहला रिएक्शन था उनसे पूछना कि क्यों, क्या खराबी है इस फिल्म में? बट बिफोर आई कुड इवन रिस्पॉन्ड, ये जो उनके बगल में बैठे थे दिस जेंटलमैन, उन्होंने कहा पर ये तो औरत ही नहीं है ना, देखो उन्होंने क्या पहना है, पैंट शर्ट पहन के जो आई है वो औरत कैसे हो सकती है? तो आई वाज टोटली स्टन्ड, आई वाज स्पीचलेस, आई डिड नॉट इवन नो व्हाट टू से। मैं इनफैक्ट उनसे कहना चाहती थी कि आपकी ही एक ऑफिसर जो यहाँ बैठी है वो भी पैंट शर्ट में ही है, क्या वो भी औरत नहीं है? बट ऑनेस्टली आई डिड नॉट वांट द कॉन्वर्सेशन टू गेट पर्सनल। मुझे हमारी फिल्म की ज़्यादा फिक्र थी, तो आई जस्ट केप्ट क्वाइट। और उसके बाद कॉन्वर्सेशन बस वैसे ही चलता गया। एवरीथिंग दैट दे हैड रिटन, 48 कट्स में से आई थिंक हम कुछ 10 या 12 कट्स तक आ गए थे और 2 घंटे हो चुके थे तब तक। और वो लोग काफ़ी रेस्टलेस हो गए, उन्होंने अपनी घड़ी देखना शुरू किया और कहा देखो भाई अभी ऑफिस बंद हो गया है, हमें अभी। एक ने कहा अरे आप मुझे स्टेशन तक ड्रॉप करेंगे, मुझे घर जाना है, मुझे खाना बनाना है। तो वी रियलाइज कि दिस इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर। और उन्होंने कहा भाई आप अभी ऐसा कीजिए, आपको ये सब अग्री हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप जाइए ऊपर। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम जाते हैं ऊपर। दूसरे में लगा लो भाई। एंड लकीली वी फिगर्ड आउट दैट हमें रिवाइजिंग कमेटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन गो स्ट्रेट टू द ट्राइब्यूनल। एंड एनीवे रिवाइजिंग में जाने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि मिस्टर नेहरानी ने वैसे भी कहा आपको वहाँ पे डबल कट्स देंगे। सो वी जस्ट वेंट टू द ट्राइब्यूनल स्ट्रेट अवे एंड वी वेरी होपफुल, वेरी पॉजिटिव that they will see the film the way we have seen it. Yeah, thank you. So to add over here, I mean, we have suggested things over there like चुतिया को तुतिया बना दो और माँ के लहंगा को माँ का आंचल कर दो. So they are all wannabe writers and directors over there who are out to make, and that my film is basically based in the very rural badlands of India. It's the language is such that contract killer आधा नमस्ते तो नहीं करने वाला. तो वो जो भाषा है वो आमतौर पे यूज होता है. मतलब ये चुतिया का क्यों किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली द वर्ड चुतिया का लिटरल मीनिंग आप यूज कर रहे हो. उसका मतलब ये है why are you doing this, why are you fooling around. So it's not the exact meaning of the sentence. So if it's cut, if the film is cut the way it is, it takes away the entire the feel of the film,
the flavor of the film. So basically, they actually try to cut the entire flavor of my film. So there's nothing that remains to the film after it's cut. So I'm definitely, this is the main issue and this is the main reason why we want to go to the tribunal. Vinita Bhatt, the heroine of this film. Request, I think time करेंगे घंटा लेके बैठी की तू यार एक करके आएंगे ना गाड़ी चलते हैं चिंता मत कर टाइम है हमारे पास I request Nawaz to express his feelings about what is happening around him. खड़े होके ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो खैर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संभाल लेंगे, मैं तो एज एन एक्टर ही बात कर सकता हूँ। और वो ये है कि कंडीशंस ऐसी हो जाएं जहाँ पे इम्प्रोवाइज करते हुए थोड़ा डर लगने लगे कि मेरे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल रही, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाती है वो सिचुएशंस, क्योंकि हर जगह हर फिल्म में थोड़ा सा सोच समझ के बोलने जब होता है तो बहुत ही मैकेनिकल होने का डर रहता है एक्टर को। अब जैसे कुशान ने भी बताया कि लाइक मैं गोली तो ऐसे नहीं मार सकता, भाई आइए जनाब सामने मैं आपको गोली मार रहा हूँ, और उसी चूंकि जिस जगह का वो कैरेक्टर है उसी तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और उससे ऑथेंटिक बनता है कैरेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि गाली नहीं होती, एक लैंग्वेज की तरह उसको यूज किया जाता है, जिससे एक वेट आता है कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने के बहुत सारे नुआंसेस यूज करने पड़ते हैं। वो तभी होते हैं जब थोड़ा जो लोकल फ्लेवर जो उसमें ऐड किया जाता है। या तो ये है कि भाई इस तरह की फिल्म बननी बंद हो जाए, तो बस वही फिर जो पहले से बनती आ रही हैं साफ सुथरी फिल्में जो हैं वही करते रहें, जैसे इस तरह की फिल्मों को कहा जाता है कि भाई तो इस तरह की फिल्म बेकार है, ये वो व्हाटएवर जो भी है। तो मेरा एज एन एक्टर मानना ये है कि जितनी लोकल होगी फिल्म उतनी ग्लोबल भी होगी। अगर आप इस तरह की फिल्मों को बिल्कुल वॉश आउट कर रहे हो तो फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्मों का आउटकम वो 0% होने वाला है। तो बेटर है कि हम इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। तो जो है मेरी एज एन एक्टर जो प्रॉब्लम थी मैंने वो बता दी, क्योंकि इम्प्रोवाइज करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो सोचना पड़ता है कि नहीं ये गलत लफ्ज़ तो नहीं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर कैरेक्टर तो क्या करेंगे। मुझे ना आज मेरी दादा दादी की बहुत याद आ रही है। जी हाँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत पहनो वो मत पहनो, ये मत देखो वो मत देखो। तो आपको लगता नहीं है कि सेंसर बोर्ड कुछ ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं? हमारे देश में मतलब 70% से भी ज्यादा लोग अडल्ट, हाँ, तो मतलब एडल्टों को अब बताया जाएगा दादा दादी की तरह कि आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। आज इंटरनेट मार्केट बहुत बड़ा है, इंटरनेट के कंटेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब पॉर्न, अगर आपको पॉर्न देखना है तो आप फ्री में देख सकते हैं, पर अगर आप फिल्म देख रहे हैं, आप टिकट लेके फिल्म देखने जाते हैं एक स्टोरी देखने, पॉर्न नहीं, तो फिल्म और पॉर्न में कुछ फर्क है। आज मैंने पढ़ा कि हमारे फिल्म में किस है, कुछ इंटीमेट सीन्स है, उससे प्रॉब्लम है सेंसर बोर्ड को। 80s और 90s के अगर आप फिल्में देखेंगे, उन फिल्मों में कितने रेप सीन्स दिखेंगे आपको, बहुत बहुत। अभी भी रेप सीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लव मेकिंग में मतलब किसिंग में, मतलब दो इंसान प्यार भी नहीं कर सकते हैं क्या? हैरान। मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड पे ऐसे दादा दादी की तरह ना लोगों को कंट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। लोगों के पास ऑप्शन है, लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे ये उनकी फ्रीडम है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। लोगों को मत रोकिए, लोगों को अगर पसंद नहीं आएंगे लोग नहीं देखेंगे, पसंद आएंगे तो लोग देखेंगे। एंड फिल्म इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। बहुत लोग, मुझे पहले इस बात की समझ नहीं थी, अब मैं देखती हूँ कि एक फिल्म में 70-80 से 100 लोग तक काम करते हैं, इतने लोगों के घर चलता है। अगर सारे फिल्म में मतलब जय संतोषी माँ टाइप्स बनने लगेंगे, कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं होगा, कोई जाएंगे फिल्म देखने? तो हम घर में बैठे डिस्कवरी चैनल देख सकते हैं, फिल्म क्यों, हिस्ट्री चैनल देख सकते हैं। फिल्म देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और फिल्म इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ।
हम लोग रियल लाइफ में भी गाली देते हैं, रियल लाइफ में भी प्यार करते हैं, किस करते हैं, तो फिल्मों में भी ये सब होगा। तो प्लीज मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड की ही जरूरत नहीं है। सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट देने के लिए ठीक है, बच्चों के लिए फिल्म है या अडल्ट के लिए है, पर उसके बाद अडल्ट लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, इसमें प्लीज दादाजी मत बनिए। थैंक यू। Thank you very much. Thank you. Thank you for the PC.